Yes. So I was telling you about the plants which are present in hilly areas. They have to experience such a cold atmosphere. उन्हें बहुत ज़्यादा cold atmosphere bear करना पड़ता है. Like you are living in Rajasthan, okay? You are living in Rajasthan. You are sitting there in your houses. आप अपने अपने घर पे बैठे हुए हो. Now you tell me that this kind of temperature is suitable for you because you are living here since birth. जब से हम पैदा हुए हैं यहीं पे रह रहे हैं. But if we talk about the climate of different places, अगर हम अलग अलग places की climate के बारे में बात करें, so if I tell you that you have to shift from Rajasthan and you have to go at some hilly area, you have to go Manali or you have to go Kashmir, what will be the change you will experience? कौन से change है जो हम experience करेंगे? Because अगर हम extreme, because Rajasthan, you know, it is a hot and dry place. राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस. अगर हम यहाँ से शिफ्ट होके किसी हिली एरिया पे जाते हैं, यहाँ से शिफ्ट होके इफ वी मूव to a hilly area, then what will happen? We will face some or the other kind of difficulty. हमें किसी ना किसी तरीके की difficulty होगी, परेशानी होगी to settle there out, वहाँ पे settle होने के लिए. But slowly, steadily, sometimes after you start adapting the surrounding, धीरे धीरे हम वहाँ की surrounding को adapt करने लग जाएंगे and हम अपने आप को वहाँ settle करने लग जाएंगे. So similar things happen with plants also. Same चीजें plants के साथ में भी होती हैं. Like you know, बेटा, everyone first sit properly. Sit properly everyone and pay attention whatever I am saying, because after explaining I'll ask each and everything to you. कोई इधर उधर नहीं देखेगा, सबका कंसंट्रेशन क्लास में होना चाहिए. मैं जो भी बोल रही हूँ एक एक वर्ड पे ध्यान से सुनिए सारे. Yes, so I was telling you that whenever we talk about plants, so जो plants hilly areas में grow होते हैं, just imagine कि वो कैसे इतना ज़्यादा cold temperature में grow कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा snow में कैसे grow कर सकते हैं, because they are adapted to the surrounding. वो surrounding के according adapt हो चुके हैं, उन्होंने उस surrounding को adapt कर लिया है, accept कर लिया है. Okay, that is why they can survive in such a extreme climate. They are usually tall and straight. ये जो plants होते हैं which grow in hilly areas, ये usually tall होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, and straight होते हैं, like Christmas tree. Christmas tree you must have seen. Christmas tree देखा होगा सभी ने. Okay? Instead of flowers, they have cones and they therefore are known as conifers. इनमें कोन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर आपने क्रिसमस ट्री देखा है, इफ यू हैव एवर सीन अ क्रिसमस ट्री, सो इट इज लाइक दिस. इस तरीके का ही होता है क्रिसमस ट्री. सो कोन शेप में होता है. अगर आप नोटिस करो, सो इट इज इन कोन शेप, जैसे कोन होती है उस शेप का होता है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कोनिफर्स. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कोनिफर्स. दे आर नोन एज कोनिफर्स. Okay, the cones have seeds in them. इनके cones में seeds present होते. There are seeds present in the cone. Conifers have needle-like leaves. They are tough and they can survive in cold and snow. Conifers में needle-like leaves present होती, जैसे सुई होती है needle. Similar kind of leaves are present in conifers. Conifers में needle-like leaves present होती है, so that इनके ऊपर snow ज़्यादा collect ना हो, so that they can survive in cold and snow. The sloping shape of the tree make the snow fall off them very easily. इनका शेप ऐसे कोन शेप में क्यों होता है? Why they are like this? ये इनका ये कोन शेप क्यों होता है? ताकि अगर इन पे बर्फ गिरे, if snow falls on them, so it can slide down easily. वो स्नो सारी स्लाइड डाउन होके नीचे आ जाए, उनके ऊपर ना जमी रहे. बिकॉज अगर ट्री के ऊपर स्नो जमी रहेगी, सो क्या होगा? उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा. Right? So they are in cone shape so that the snow can fall off easily from them. The pine, spruce, cedar and fir are conifers. पाइन ट्री हो गया, सेडर ट्री हो गया,
फिर ट्री हो गया, दे आर कोनीफर्स, ये कोनीफर ट्री होते हैं, दे डू नॉट शेड all their leaves at the same time and so look green throughout the year. ये अपनी सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते. That means you know that during autumn season, जब autumn season होता है, so plants generally shed off their leaves. Plants अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, राइट. ऑटम सीजन में प्लांट्स पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पतझड़ का मौसम बोलते हैं जिसको, राइट. बट दीज प्लांट्स विच आर ऑल्सो नोन एज कोनीफर्स, ऐसे प्लांट्स जिनको हम कोनीफर्स भी बोल रहे हैं, दीज प्लांट्स डू नॉट शेड ऑल ऑफ देयर लीव्स, ये अपनी सारी की सारी लीव्स एक साथ नहीं गिराते हैं. दैट इज वाई दे अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए ये पूरे साल ग्रीन ही लगते हैं. ओके They are therefore called evergreen trees, क्योंकि ये पूरे साल आपको ग्रीन दिखाई देते हैं, इसीलिए इन ट्रीज को क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज, यानी सदाबहार ट्रीज बोला जाता है. इनको हर टाइम में ग्रीन रहते हैं, सदाबहार ट्री बोलते हैं इनको. इन हिंदी इट इज नोन एज सदाबहार, इन इंग्लिश इट इज नोन एज एवरग्रीन, बिकॉज ये हर टाइम ग्रीन रहते हैं, ये एक साथ अपनी सारी पत्तियां नहीं शेड करते. यहां तक समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? Okay. Oak, maple, birch and beech tree shed all their leaves in winter to protect them from cold. On the other hand, see, कुछ कोनीफर ट्री होते हैं जो अपनी सारी लीव्स नहीं शेड करते हैं, बट देयर आर सम ट्रीज विच शेड देयर लीव्स कंप्लीटली टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड. कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम कोल्ड. इसमें से कौन कौन से ट्री आते हैं? ओक, मेपल, ब्रिच एंड बीच ट्री. ये सारे ट्री अपनी सारी की सारी पत्तियां शेड कर देते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम cold. Now the next kind of adaptation we have to learn right here is plants in plains. Plains में plants कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. Plains यानी जो normal area होता है, plains में plants कैसे होते हैं. Trees grow in plains have lot of spreading branches. जो plains पे आपके tree grow होते हैं उनकी branches बहुत ज़्यादा spread होती है, wide branches होती हैं, बहुत ज़्यादा branches होती है, उनके अंदर टहनियाँ बहुत ज़्यादा होती है. branches means टहनियाँ. Trees like banyan tree, peepal tree, ये तो सबने देखे होंगे. mango tree, have you ever seen banyan tree? बरगद का पेड़ देखा है सबने? बरगद का पेड़ देखा है, बैनियन ट्री. पीपल ट्री देखा है सबने, पीपल का पेड़. मैंगो ट्री देखा होगा, राइट. ये सारे ट्रीज आपके प्लेन पे ग्रो होते हैं, यानी मेन लैंड पे ग्रो होते हैं. और ये जितने भी सारे ट्रीज हैं इनकी ब्रांचेस अगर आपने नोटिस करी हो, सो द ब्रांचेस आर स्प्रेड वाइडली, बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होके ब्रांचेस इनकी होती हैं. ओके, दे आर मेनली ग्रोइंग इन वार्मर क्लाइमेट, ये ज्यादातर वार्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं. Many plants also grow in places that are hot and wet. कुछ plants इनमें से hot and wet places पे भी grow करते हैं. Teak, tamarind, rubber, coconut, pepper, tea, coffee, sugarcane, ये सारे के सारे जो plants हैं, I will tell you one by one. Teak plant, tamarind, tamarind means इमली होती है. Tamarind is इमली in हिंदी, okay? रबर प्लांट आपको पता है, कोकोनट नारियल. पेपर, पेपर आपको पता है जो काली मिर्च होती है, मिर्ची. टी चाय. कॉफी यू नो, शुगर केन गन्ना. दे ग्रो वेल इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो हॉट एंड वेट क्लाइमेट में ये सारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करती हैं. हॉट एंड वेट मतलब क्या होता है? हॉट मतलब जहाँ ज्यादा गर्मी हो और वेट मतलब जहाँ ज्यादा बारिश होती हो, ऐसे क्लाइमेट में ये ग्रो करते हैं अच्छे से. Where there is heavy rainfall, some of the trees are evergreen and some are deciduous. So now what are deciduous? Deciduous मतलब होता है new leaves grow in spring, they are known as deciduous. Deciduous tree or evergreen tree. There are two kinds of tree we have to study about. Two types के trees हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है.
सो टू टाइप्स ऑफ ट्रीज जो यहाँ पे मेंशन किए हैं वो कौन कौन से हैं? टू टाइप्स ऑफ trees. Which are the two types of trees? Deciduous tree okay and evergreen tree. Evergreen tree. ठीक है, these are the two types of tree, deciduous tree and evergreen tree. Now what do you mean by deciduous tree? Deciduous trees are the trees जिनके leaves shed हो जाते हैं during autumn और during a specific season and they grow new leaves again, उस पे पूरे new leaves आते हैं, ऐसे trees को हम deciduous बोलते हैं. And evergreen trees वो trees होते हैं जिनकी leaves हर time green रहती हैं, सदाबहार होती हैं, जो plants अपनी leaves को shed नहीं करते. Those plants or those trees who do not shed their leaves at any season and they are evergreen throughout the year, they are known as evergreen trees. And if we talk about deciduous trees, so those trees who shed off their leaves after a particular season and then grow new leaves all over again, they are known as deciduous tree. Okay, समझ आया? डेसिडुअस ट्री अपने पूरी प्लांट की लीफ को शेड कर देते हैं और न्यू लीव्स को ग्रो कर लेते हैं, तो वो डेसिडुअस हो जाते हैं. एंड एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहते हैं और अपनी प्लांट लीव्स को शेड नहीं करते हैं. क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर? गुड. The deciduous trees shed their leaves in dry season. Deciduous trees जो होते हैं, what do? They shed their leaves in dry season. वो ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, यानी अपनी लीव्स को, पत्तियों को गिरा देते हैं. एंड ड्यू टू द वाटर लॉस, ड्राई सीजन में क्या होता है, यानी कि जब सूखा पड़ता है या ज्यादा सूख जाता है या फिर बारिश नहीं होती, ज्यादा गर्मी होती है, सो ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं सो दैट इनके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो लॉस ना हो, वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो, बिकॉज जितनी लीव्स होंगी उतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा उसके अंदर से, उतना ज्यादा वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाएगा. ओके. प्लांट्स इन मार्शी प्लेट्यू और मार्शी प्लेसेस यानी जो दलदल होता है ना, दलदल जानते हो, मडी एरिया दलदल बोलते हैं जिसको. डू यू नो व्हाट इज दलदल? इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श. ओके, सो जो मडी एरिया, दलदल वाला जो एरिया होता है, in places which have clayey soil and plenty of water, जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है और बहुत सारा पानी होता है, the water cannot drain, तो उसके अंदर water soak नहीं हो पाता, water drain नहीं हो पाता. The water collects in the soil and covers it. water उसके ऊपर collect हो जाता है soil के ऊपर, clayey soil के ऊपर, और उसको पूरा cover कर लेता है. Mangrove trees grow in such marshy or swampy places. So marshy और swampy का मतलब क्या है? यही दलदल वाली जो places होती है, गीली places जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा collected रहता है, ऐसी places पे आपके mangrove trees grow करते हैं. Now what are mangrove trees? Do you know what are mangrove trees? मैंग्रोव ट्रीज वो होते हैं जिनकी रूट्स आपकी जमीन से ऊपर दिखाई पड़ती हैं. द ट्रीज विच हैव रूट्स अबव द सॉइल, इस तरह के ट्रीज होते हैं बड़े बड़े जिनकी रूट्स आपको सॉइल के ऊपर दिखाई पड़ती हैं. आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज. होल्ड ऑन. कैन यू सी दीज ट्रीज ऑन स्क्रीन? दीज आर नोन एज मैंग्रोव ट्री. इन्हीं ट्रीज को मैंग्रोव ट्री बोलते हैं. ओके, आपको इनकी रूट्स दिखाई पड़ रही हैं, देखो इनकी रूट्स कैसी हैं, अबव द सॉइल. दिख रहा है सबको? यस और नो?
ओके, सो दीज आर नोन एज मैनग्रोव ट्रीज, इन्हीं को हम मैनग्रोव ट्रीज बोलते हैं. ओके, करेक्ट. मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन सच मार्शी और स्वैम्पी प्लेसेस. मैनग्रोव ट्रीज ज्यादातर आपके स्वैम्पी और मार्शी यानी ये दलदल वाले एरियाज में ज्यादा ग्रो करते हैं. Therefore, they have roots that grow above the soil. The roots do not get air, water which covers the soil. क्यों इनकी roots ऊपर यानी soil से ऊपर क्यों होती है इनकी roots? Because if they are inside the soil, तो आपको पता है कि उसके ऊपर clay soil यानी दलदल की layer है, जिसकी वजह से वो roots breathe नहीं कर पाएंगी. The roots cannot breathe inside the soil. That is why they grow above the soil. इसीलिए वो soil के ऊपर grow करती है, ना कि inside the soil. Therefore, they have the roots that grow above the soil. These roots are called breathing roots. इन roots को क्या बोलते हैं? Breathing roots. ऐसी roots जो above the soil grow करती हैं and breathe कर सकती हैं above the soil. They can breathe actually. They can take in air and they can survive. So such trees are known as trees which can grow in marshy places. Okay. Now tomorrow we'll start this new topic, that is aquatic plants. अभी तक हमने लैंड के प्लांट्स पढ़े, अब हम एक्वेटिक प्लांट्स पढ़ेंगे. सो हार्डली 3 pages आर लेफ्ट ऑफ दिस चैप्टर. मोस्ट प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. टिल देन अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स राइट नाउ. आस्क योर डाउट्स.